ہاں بھائی، پھر زبار اور ریشم کی شادی کی بھی تاریخ طے کر لیتے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ولیمے میں ہم اپنی مریم کی رخصتی بھی کر لیں. فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابو. کتنے دھوکے باز ہو تم. مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم انگیجڈ ہو. میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا پارس. اتنی بڑی بات مجھ سے چھپاتے رہے. بڑے وفادار بنتے تھے. کہاں گئی تمہاری لائلٹی؟ جھوٹے مکھا. اپنے گھر والوں کی ہر ایک بات بتایا کرتے تھے. بس یہی بتانا بھول گئے کہ تم انگیجڈ ہو. تم نے کبھی میری ذات کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. ماں کہاں ہے تمہاری؟ مجھ سے بات مت کریں. میں تم سے بات کر رہا ہوں. میرا نام مت لیجیے آپ، کیونکہ اب سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے بیہیو کر رہے ہو اپنے باپ کے ساتھ؟ آفتاب بیٹا، یہ ماموں نے آپ کو پارس کے جنازے تک پر نہیں بلایا. اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اپنے ماموں کی طرح شک کر رہے ہو اپنے باپ پر. اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے بیہیو کر رہا ہوں؟ شک نہ تو وہ کر رہے ہیں اور نہ میں. انہیں بھی یقین ہے، بلکہ اور مجھے بھی یقین ہے میری اور پارس کی منگنی کو نہیں رکوا سکے تو شٹ اپ، شٹ اپ. آفتاب، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدلے کی آنکھ میں یہ سب کچھ کریں گے، کیونکہ آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے. آپ بھی برابر کے مجرم ہیں. کچھ نہیں کیا میں نے. یہ سب کچھ وہاب نے کیا ہے. پھر بھی آپ قصوروار ہیں. کسی کا ساتھ نہیں دیا میں نے. بیٹا یقین کرو مجھ پر. میں یقین نہیں کروں گا آپ پر. جھوٹ. بولا ہوا گاؤں گھنے جنگلوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا گاؤں تھا جس کا نام نقشوں سے مٹ چکا تھا. وقت کے ساتھ لوگ بھی اسے بھول گئے، مگر وہاں رہنے والے چند خاندان آج بھی امید کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایک نوجوان مسافر ایاز سفر کے دوران راستہ بھٹک گیا اور اتفاق سے اس گاؤں تک پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ نہایت محنتی تھے، مگر دنیا سے کٹے ہونے کی وجہ سے نہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملتی تھی اور نہ ہی ان کی محنت کا پھل انہیں مل پاتا تھا. ایاز نے گاؤں چھوڑنے کے بجائے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے نوجوانوں کے ساتھ مل کر جنگل کا پرانا راستہ صاف کیا، ٹوٹا ہوا پل دوبارہ تعمیر کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک نشانی نصب کر دی تاکہ مسافر آسانی سے راستہ پہچان سکیں. کئی ہفتوں کی محنت کے بعد پہلی بار دوسرے علاقوں کے لوگ اس گاؤں تک پہنچے. انہوں نے وہاں کی دستکاریاں، شہد اور پھل خریدے. آہستہ آہستہ گاؤں کی معیشت بہتر ہونے لگی، بچوں کے لیے اسکول بنا اور ایک چھوٹا سا طبی مرکز بھی قائم ہو گیا. چند سال بعد وہی بھولا ہوا گاؤں اپنی خوبصورتی، محنتی لوگوں اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہو گیا. گاؤں کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی جس پر لکھا تھا، جو دوسروں تک پہنچنے کے راستے بناتا ہے وہ اپنی منزل بھی آسان کر لیتا ہے. جب ایاز سے پوچھا گیا کہ اسے اس گاؤں سے کیا ملا تو وہ مسکرا کر بولا، میں راستہ تلاش کرنے نکلا تھا مگر مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا. سبق: دوسروں کی ترقی کے لیے بنایا گیا ایک راستہ آخرکار ہماری اپنی زندگی کو بھی کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. بولا ہوا گاؤں گھنے جنگلوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا گاؤں تھا جس کا نام نقشوں سے مٹ چکا تھا. وقت کے ساتھ لوگ بھی اسے بھول گئے، مگر وہاں رہنے والے چند خاندان آج بھی امید کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایک نوجوان مسافر ایاز سفر کے دوران راستہ بھٹک گیا اور اتفاق سے اس گاؤں تک پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ نہایت محنتی تھے، مگر دنیا سے کٹے ہونے کی وجہ سے نہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملتی تھی اور نہ ہی ان کی محنت کا پھل انہیں مل پاتا تھا. ایاز نے گاؤں چھوڑنے کے بجائے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے نوجوانوں کے ساتھ مل کر جنگل کا پرانا راستہ صاف کیا، ٹوٹا ہوا پل دوبارہ تعمیر کیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک نشانی نصب کر دی تاکہ مسافر آسانی سے راستہ پہچان سکیں. کئی ہفتوں کی محنت کے بعد پہلی بار دوسرے علاقوں کے لوگ اس گاؤں تک پہنچے. انہوں نے وہاں کی دستکاریاں، شہد اور پھل خریدے. آہستہ آہستہ گاؤں کی معیشت بہتر ہونے لگی، بچوں کے لیے اسکول بنا اور ایک چھوٹا سا طبی مرکز بھی قائم ہو گیا. چند سال بعد وہی بھولا ہوا گاؤں اپنی خوبصورتی، محنتی لوگوں اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہو گیا. گاؤں کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی جس پر لکھا تھا، جو دوسروں تک پہنچنے کے راستے بناتا ہے وہ اپنی منزل بھی آسان کر لیتا ہے. جب ایاز سے پوچھا گیا کہ اسے اس گاؤں سے کیا ملا تو وہ مسکرا کر بولا، میں راستہ تلاش کرنے نکلا تھا مگر مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا.
सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी जिंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है।
भूला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भूला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भूला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भूला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था।
वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहाँ रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहाँ रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहाँ रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहाँ रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे।
एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया।
इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया।
इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शम से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शम से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया। इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। सबक, दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी ज़िंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शम से मिट चुका था। वक्त के साथ लोग भी उसे भूल गए, मगर वहां रहने वाले चंद खानदान आज भी उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। एक नौजवान मुसाफिर अयाज सफ़र के दौरान रास्ता भटक गया और इत्तेफाक से इस गांव तक पहुंच गया।
इसने देखा कि गांव के लोग निहायत मेहनती थे, मगर दुनिया से कटे होने की वजह से ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिलती थी और ना ही उनकी मेहनत का फल इन्हें मिल पाता था। अयाज ने गांव छोड़ने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने नौजवानों के साथ मिलकर जंगल का पुराना रास्ता साफ किया, टूटा हुआ पुल दोबारा तामीर किया और पहाड़ की चोटी पर एक निशानी नस्ब कर दी ताकि मुसाफिर आसानी से रास्ता पहचान सकें। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पहली बार दूसरे इलाकों के लोग इस गांव तक पहुंचे। इन्होंने वहां की दस्तकारियां, शहद और फल खरीदे। आहिस्ता आहिस्ता गांव की मईशत बेहतर होने लगी, बच्चों के लिए स्कूल बना और एक छोटा सा तिब्बी मरकज भी कायम हो गया। चंद साल बाद वही भोला हुआ गांव अपनी खूबसूरती, मेहनती लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हो गया। गांव के दरवाजे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, जो दूसरों तक पहुंचने के रास्ते बनाता है वो अपनी मंजिल भी आसान कर लेता है। जब अयाज से पूछा गया कि उसे इस गांव से क्या मिला तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रास्ता तलाश करने निकला था मगर मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। सबक: दूसरों की तरक्की के लिए बनाया गया एक रास्ता आखिरकार हमारी अपनी जिंदगी को भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देता है। भोला हुआ गांव। घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। वक्त के साथ